ज्वाइन कर रही हैं, एंड आई हैव बीन नोइंग हर फॉर a very long time, but it is through JS that we recently renewed our acquaintance. Actually, we used to live very close to each other. We belong to same place, same area, same region. So I am very happy that शी इज हियर. और मैं जब डीआर मेहता साहब से मिला था तो उन्होंने बताया था कि वो परिग्रह पर काम कर रहे हैं, पर मुझे पता नहीं सुषमा जी ने इतना बड़ा उसमें भूमिका निभाई है और इतना अच्छा काम किया है, एक कोष बनाया है. तो हम बड़े उत्सुक हैं कि उनसे सुने हैं उन्होंने क्या काम किया है अपरिग्रह के लिए. तो इसके साथ ही आई हैंड ओवर दिस टू Dr. Pokharna to start the proceedings. And I think this is a great thing for JS that she is joining us. It will, I think, help both of us to achieve our objectives. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी साहब आपको. मेरी एक्चुअली सुषमा जी से जान पहचान बहुत पुरानी है. उनका ससुराल उदयपुर में ही है. भंडारी साहब कह रहे हमारे घर के पास रहते थे, तो उनका जो ससुराल है वो हमारे उदयपुर के घर के काफी पास में है, जस्ट विद इन अ फरलॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. मतलब और ये हमारे क्लोज रिलेटिव है एक्चुअली. मतलब तो इनके मैंने आप परिग्रह पे काफी व्याख्यान पे कई सेमिनार में सुने हैं, मतलब कम से कम 3-4 में मैंने सुने हैं. बहुत प्रभावित हुआ मैं उनसे. तो हमारा सौभाग्य है कि वो है जो आज हमको उनके कार्य के बारे में बताएंगी. तो बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. और आज की तारीख में जब पूरा विश्व इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात कर रहा है, तो उसके मतलब अपोजिट बात करना मतलब पता नहीं हमारे इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर है उनको समझ में आएगी कि नहीं आएगी. वो सब ग्रोथ रेट की बात करते हैं. 6% ग्रोथ रेट, 7% ग्रोथ रेट. उनको कहे भाई कि 6% के बजाय 4% पे लाओ, अब बहुत हो गया मतलब. तो वो शायद वो आश्चर्य करेंगे ये कैसे पॉसिबल है. मतलब तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है. मतलब और आज को इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे लाइट में हमको इसको स्टडी करने की जरूरत है और एक नया मॉडल बनाने की जरूरत है कि परिग्रह को एक्शन में कैसा लाया जाए. मतलब पर उनका जो अनुभव है वो हमको उससे लाभान्वित करेंगी, ऐसा मैं है जो मतलब सोचता हूँ. तो मैं है जो अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनिल जी जैन से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सुषमा जी का परिचय वो दें. परिचय हो गया, सर शुरू करते हैं. नहीं, okay, it is thank you Pokharna sir. It is our great pleasure to have with us a versatile personality, Dr. Sushma Singhvi. I shall give a brief about her. Dr. Singhvi is Director Research in Prakrit Bharati Academy, Jaipur, Emerite Professor in Jain Vishwa Bharati University, Ladnu, Consultant Sanskrit in Prakrit Bardhaman Mahavir Open University, Kota, and Chairperson Rajasthan Sanskrit Academy, Jaipur. This is very short list. Otherwise, her CV is very big. I just compiled very few things out of that. She is Ghanaian too, and also associated with many prominent educational bodies and societies. Many did PhD under her and still guiding. She is guiding many students. She has written many papers. She has been recipient of many awards and honors, a very big list. I can't spell out each and every one here. She wrote and edited many books, including Aparigraha Vishwakosh that Bhandari Saab was telling short while ago. And I heard many of her lectures. She is very good orator. You yourself will find that you can't escape her lecture during this session. A very good orator. So I welcome Dr. Sushma Singhvi ji, and her topic today is
psychological aspect of aparigraha. So now forum is to Dr. Sushma Singhvi. Please start your talk. Thank you. Namaskar. Esteemed members of Jain Academy of Scholars, respected Professor Narendra Bhandari Sahab, respected Professor Surendra Pokharna Sahab, Professor N.C. Kachara Sahab, Dr. A.K. Jain Sahab, Professor Dharamchand Jain Sahab, Shri Subhash Ji Jain, Dr. Purnima Ji, Purvi Ji Dave, and all the members, I am indebted to you all for giving me an opportunity to discuss the psychological aspects of aparigraha. प्रोफेसर सुरेंद्र पोखरना साहब ने अभी एक प्रश्न जरा सा छोड़ा, उस प्रश्न को कहते हुए फिर मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की ऐसी स्थिति होने पर अर्थशास्त्र ने हमको सिखाया कि दुनिया में संसाधनों की स्कैरसिटी है, इसलिए बहुत कंपटीशन पूर्वक उत्पादन करो, और अगर कोई उत्पादन की इकाई काम नहीं कर रही हो तो उसको मर्ज कर दो। तीन चीजें। इसके अगेंस्ट में अगर कोई इकोनॉमिक्स का मॉडल अपरिग्रह पर आधारित होता है तो उसमें यह बताया जाएगा कि इस दुनिया में संसाधन अबंडेंट हैं इफ वी गो बाय नीड नॉट बाय ग्रीड, और चूंकि अबंडेंस है और वो पुनः संग्रहित हो जाए ऐसा हम प्रयास करते रहें तो फिर कंपटीशन की जरूरत नहीं है, फिर कोऑपरेशन से काम होना चाहिए। जहां जो मटेरियल रॉ मटेरियल उपलब्ध हो वहां उसका उत्पादन हो वगैरह वगैरह, और मर्ज करने की बजाय मोटिवेशन के द्वारा उनको खड़ा करना चाहिए। तो अपरिग्रह पर बेस्ड अगर इकोनॉमिक मॉडल होगा तो निश्चय ही स्कैरसिटी के अगेंस्ट अबंडेंस होगी, कंपटीशन के अगेंस्ट कोऑपरेशन होगा और मर्जिंग के अगेंस्ट मोटिवेशन होगा। इस सुरेंद्र पोखरना साहब की बात पर इस बात को कहते हुए नाउ आई कम टू द टॉपिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अपरिग्रह। Aparigraha is a concept which is fundamental to both the yoga and Jain tradition of Indian thought. There is no single English word which could express what aparigraha really means. It, however, is a self-inspired and self-driven form of non-possessiveness, non-greed, non-covetousness, non-accumulation, non-hoarding, trusteeship, non-selfish attachment or minimum consumption, and minimizing desires and possessions to fulfill real needs or necessities only. It is minimum disturbance to the natural environment and minimum dependency on material objects, or the search of peace and happiness, not by trying to fulfill the imaginary needs, pseudo wants, and unquenchable desires. Aparigraha also means no misuse of power and influence. In nature, the earth, the water, the sun, the air, the vegetation, etc., are available for all without any discrimination of caste, creed, or culture. Whatever production these natural resources bring forth with a little exercise of human beings should be enough for all to fulfill their needs. Ideally, sir, there should be no possessiveness and holding of goods based on anyone's feeling of ownership. These statements define the non-possessive attitude. Every resource is there for all of us, but not all for us. Yes, somebody's. The sum and substance of aparigraha is, number one, do not accumulate more than your need. Number two, do not earn wealth by improper means. And number three, do not cause pain or harm to any living entity, animal or human laborer while earning wealth. However, aparigraha is voluntary and cannot be completely prescribed in statute books, rules, or directions. Yet, the 24th Tirthankara Lord Mahavir has prescribed the vow of aparigraha Mahavrat for monks and vow of parigraha parimana vrat or ichha parimana anuvrat for laymen or householders. Aparigraha is a compound word, a plus parigraha. A prefix to parigraha is a prefix of negation, but this negation connotes less or minimum. So aparigraha, however, does not mean do not possess. It is not agrahan.
but it is not grasping all around. Parigraha pariman is to minimize or discipline our possession. Ichha pariman is to curb our desires and wants. Only accept or accumulate as per bare minimum necessity or need. Parigraha is external as well as internal. Parigraha emotionally connotes attachment or attraction, that is, internal 14 possessions, which include Mithya-darshan plus 4 kashayas plus 9 no kashayas, and its materialistic connotation is hoarding or accumulation, that is, external 10 types of possession of material objects and things. Parigraha could be originate from the movement of a satellite like the moon around the earth. The movement of earth around the sun is yet another instance of parigraha. Thus, the moon is tied to the earth, which in turn is tied to the sun through the bondage of parigraha. It is this parigraha, the act of attachment and holding, which sows the seeds of purvagraha or prejudice in the fertile landscape of mind. Let us discuss the psychological aspect of aparigraha as depicted by great psychologists like father of American psychology William James, the Austrian neurologist Sigmund Freud, German social psychologist Erich Fromm, American psychologist William McDougall, then Letwinsky, the writer of the book Is There an Instinct of Possession? Then Seligman, then American psychologist Ellis, then Professor Helga Dittmer, and Csikszentmihalyi and Rochberg Heldon, and B. Wilpert, and Elena Rutskaza, etc. There is an important role of psychology in the origin of desire and possessiveness in human nature. Material possession are seen as protection against pain and suffering in life. Discontent with the present as well as insecurity about the future motivate human being to accumulate things. He tries to fulfill his wants with external objects, that is parigraha, and looks for happiness. Material things are considered lively and man imposes his happiness and sorrow onto them. On losing some material possession, he considers himself lost. Lord Mahavir says, a person attached to parigraha behaves like an infatuated one because mucha parigaho butto. Parigraha is infatuation. Thus, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, we regard our possession as parts of ourselves. Our sense of self is often very insecure. We may have low self-esteem, and we continue to support it by accumulating more and more material things. We tend to think that we are what we possess. Psychologists say that we tend to think we are what we possess. William James, who is considered to be the father of American psychology, stated that people largely identify themselves with what they possess. Material possession constitute a significant part of one's self or ego and develop in the process of our growing up in a society. William James called it the material self, which constitutes personal belongings and associated things and objects. He suggested that one's material belongings, such as a home, clothes, car, furniture, etc., are all extensions of one's own self. James held that losing these personal belongings is akin to losing some part of oneself, which in extreme case may give a sense of nothingness if what one loses are personal belongings to which one is deeply attached. People whose personal self largely constituted of material things are always insecure and vulnerable. Lord Mahavir paved the way of Bheda Vijnana and Dhyana
to realize two different entities. One is jiva or soul or self, and the other is ajiva or insentient material objects, parigraha. Attachment is the binding force of jiva and ajiva. Hence, non-attachment leads to non-identification of possession with soul or itself. Now I come to Sigmund Freud. Sigmund Freud had talked about what he called the Oedipus complex, which develops at the very early stage of an upgrowing child. It refers to the desire to have the exclusive possession of one's own mother. It's quite likely that this desire to possess one's mother gets transferred to material things at a later stage in life. This identification of the ego with material possession leads to a lifetime pursuit of having more and more of it. This desire at some stage becomes so intense that one comes to identify with what one has acquired and accumulated. But in comparison to this, see what our Shastra Sutra Kritan says. Those who consider themselves as the owner of sentient and insentient beings or accumulate those material things, motivate others to do so, and acknowledge the action of possessiveness can never become free from miseries. Chittamantam achittam va parigijya kisamavi annam va anujanati evam dukkha namuchchayi. German social psychologist Erich Fromm, who came from a psychoanalytic tradition, argued in his book named To Have or To Be that there are two ways of existence that compete for the spirit of mankind, namely having and being. The having mode looks to things and material possession and is based on aggression and greed. According to Lord Mahavir, being is an independent conscious self, which is entangled with body and other haves, which are not the nature of self. So now it's very clear. Now I come to William McDougall, stated that the impulse to collect and hold various objects is displayed by almost all human beings and is instinctive. Litvinsky, the writer of the book, Is There an Instinct of Possession?, observed in his work that children display an impulse to act possessively and assert claims of ownership at a very early age. It must be an innate tendency, though it owes its strength as well as direction to social education. We know that a lot of habits of even small children are acquired as result of imitation. According to karma theory, acquired habits may be brought over from previous lives and be strengthened and weakened in future lives. Seligman suggested that ownership and its psychological state is experienced early in the development process, but for young children, the differentiation between self and not self is on the basis of the sense of personal control. It is also through a parent's education, that is, inverted comma, not yours, again inverted comma, don't touch, go and get your ball, use your own towel, that little children come to consider objects as their own. Ellis, an American psychologist, reviewed the literature on possession and property and concluded that possessive behavior seems to be universally present in the human societies he studied and is most evident in references to the self and one's own personal space. Professor Helga Dittmar argued that biology may play a role in possessive behavior, but social and cultural factors significantly influence how people relate to their material belongings. Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton provide an explanation of how we develop a sense of possession of material things. They have written a book, Meaning and Modernity, Social Theory in the Pragmatic Attitude. They suggest that we invest, inverted comma, psyche energy, comma close, in an object to which we have directed our efforts, time,
and attention. According to Wilpert, psychological ownership of an object whose conceptual core is a sense of possession of a particular target object advocates the notion of what do I feel is mine. We see that some material possessions are essential for living, but it becomes painstaking and pathological when hankering after plenty of choices and their accumulation become a lifestyle or goal in itself. New research shows how the human brain struggles with plenty of choices, leading to choice overload. The research shows that although the human brain finds the concept of choice or even an abundance of choice attractive, too many options make it difficult for the brain to process, evaluate, and compare these choices. This phenomenon is called choice overload, and it explains why we often walk away from a well-stocked shop or supermarket empty-handed. In her research paper, Alina Ryutskaza says, in Western cultures, we like to have choice. We enjoy freedom, and choice makes us feel that we are in control of our decision. But beyond a certain point, however, that choice becomes overwhelming and decision making is impaired. If given too many alternatives, people can delay decisions, and this might have serious consequences. The paper, inverted comma, choice overload reduces neural signatures of choice set value in dorsal striatum and anterior cingulate cortex, ACC, inverted comma close, examines the process that happens in the human brain when it assesses different sets of options. IESC Business School Associate Professor of Marketing, Alina Ryutskaza, and her colleagues used MRI scanners to study brain activity of people choosing from different sized assortments. They found two regions that encode choice overload: the anterior cingulate cortex, that is ACC, where the potential costs and benefits of decisions are weighed, and the striatum, a part of brain responsible for determining reward. They found that both areas were more active when presented with an intermediate number of choices. Too few or too many choices generate less value for people than sets with an intermediate number of options. This research offers new and important insights into the internal mechanisms that are activated during decision making. It clearly points to the importance of capping the number of options available in terms of perceived value to the decision maker, and this brings our finger towards aparigraha. Let us see the other side also. Mahavir said, Ega manusya jai, no hine, no airitte. All living beings from Ekindriya to Panchendriya have the same soul. All want to live. Nobody wants to die or tortured. Hence, if this Atmopamya Bhav takes place, then there is no other living being than self. Then we will not consider any living being as the other. So the concept of detachment, self and the other influences the mental and cognitive process which influences human behavior. As a result, this paves the way towards elimination of prejudices. In a detached state, the boundary demarcating self from the other vanishes. In such a state, the sphere of prejudices either shrinks or becomes very dilute due to its enlargement to the whole cosmos, Vasudhaiva Kutumbakam. This assimilation of self into all living beings, Bhuta, Sattva, Prani, Jeev, can then become a foundation for prejudice-free mutual understanding and exchange of thoughts. So now we have seen the two concepts. One, that self is attached to material things, and the other is self is considering no one is other than self. Now we have some wrong notions, some of the misconceptions about aparigraha which need to be addressed are listed below. Number one, possession defines what we are
is a wrong notion. All our life, we accumulate material and virtual things, and we become what we have. Attachment to these possessions take shape of the extension of our own self. To attain freedom from this want to have more needs disconditioning of mind and uncovering one's true self. Aparigraha offers way to enjoy such possessions and still remain non-attached to them. Ajiv can never become Jiva and Jiva can never become Ajiv. Hence, possession cannot define ourselves. There is a misconception in the human society that those who accumulate wealth are prosperous and happy individuals. As a philosophical dictionary meaning, prosperous means being wealthy, while in reality, wealthy is one who has no material scarcity or material demand or material demand for more. That is, the wantless one is wealthy, and that wealthy is prosperous and happy. One who is demanding is not wealthy but a beggar. But one who is wantless is wealthy and he is prosperous and happy. It is because happiness does not lie in material objects. Happiness is an inner psychological state. In fact, aparigraha is the prop or buttress of happy and prosperous life. One more wrong notion and that is very important, that fulfillment of desires gives happiness. Suppression of desires causes mental illness. The fact is that wants can never be satisfied and endless desires can never be fulfilled. Sometime when we fulfill any of our desires, like fulfilling the desire to purchase a car, we purchased a car and felt happiness. But this happiness was not derived due to fulfillment of that desire to purchase the car, but actually happiness derived from the fact that now there was no desire or absence of desire existed. The absence of desire gave happiness, not the fulfillment of desire. Otherwise, after fulfilling one desire, no other desire should arise. There is a hairline difference between इच्छा की पूर्ति करने में और इच्छा का अभाव होने में केवल एक बहुत बारीक अंतर है. हमको लगता है कि इच्छा की पूर्ति से सुख मिला, इच्छा की पूर्ति होने से सुख नहीं मिला. वह पूर्ण होने पर इच्छा नहीं रही इसलिए सुख हुआ, क्योंकि जैसे ही कोई दूसरी इच्छा पैदा हुई तो फिर हम दुखी हो गए. So therefore the absence of desire gave happiness, not the fulfillment of desire. Otherwise, after fulfillment one desire, no other desire should arise. So the absence of want or wantlessness is the key to aparigraha, and that gives happiness. A famous economist, Professor J.K. Mehta, has opined that want means pain. According to him, satisfaction implies reaching a state of wantlessness. This can be achieved only by eliminating wants and not by satisfying them. I come to one more wrong belief, that an aparigrahi being poor cannot be happy. Aparigrahi is not poor in any case. He has opted so-called poverty of not having money or things that are not necessary, which on the contrary tend to become a psychological burden. I quote maxims from Jewish literature. It says, the more possession, the more anxiety. Who is rich? He who rejoices in his portion. Henry David Thoreau opined that keeping things more than the number of our fingers is snatching the rights of others. Holding and accumulating like ants is improper. Atharvaved also says, earn with 100 hands and distribute it in 1,000 hands. Shata hasta samahara, sahasra hasta sankira. Osho observed that aparigraha does not respect poverty or does not oppose development, but it is an announcement of the futility of riches or so-called wealth. One more notion, that since I produce, purchase, collect material things and hence those belong to me, I am the owner of them. I have right to use or waste anything. This notional thought of mine is not right according to Lord Mahavir, because
Like living beings, material things also have their own individual and free existence. No one can own them. Those can only be used and utilized. The wrong notion of mindness is the cause of immense misery and turmoil in the world. How can one diminish the entity of anything by sheer wastage? Indeed, in some European nations like Germany, guests are made to pay for the excess food ordered but not consumed by them. Now, in the end, the question arises that why should I serve others, distribute my earnings to others? The answer lies in observing Upbhog, Paribhog, Parimana Vrat by householders. Vegetation, air, water, etc. serve me for my existence. People from all professions serve me, providing shelter, clothing, food, and other things. Hence, it's my duty not to pollute environment, not to become an instrument for situation in which other living beings starve. अपरिग्रह is supportive to all living beings. जब मैं किसी चीज का सेवन करती हूँ, वो सही रूप में होकर मेरे लिए मेरे अस्तित्व को बनाए रखता है, तो उसकी सेवा करना मेरा दायित्व है। और आज इस कोविड के समय में भी सेवा करना, मेरे तन पर एक साड़ी आती है तो कितने हाथों से गुजर कर किसान बोता है, कोई उसको सूत बनाता है, कोई उसका कपड़ा बनाता है, फिर मार्केट में आता है, कोई बेचता है, कोई लाता है। तो अगर इनमें से कोई भी अभावग्रस्त है तो उसका अभाव दूर करने का मेरा भी दायित्व बनता है, क्योंकि मैं इसका सेवन करती हूँ, सर्दी गर्मी से बचाव करती हूँ। मैं पानी पीती हूँ तो वो पॉल्यूट नहीं हो, मैं मकान में रहती हूँ तो खान में पत्थर का शोषण नहीं हो। तो ये चीजें ये अपरिग्रह को डिनोट करती हैं कि चूंकि मैं सेवन करती हूँ इसलिए सेवा करना मेरा दायित्व है। इन द एंड आई वुड लाइक टू समराइज दैट बीइंग अपरिग्रही and to abstaining from ownership of material things opens the gate of social justice. The absence of hoarding support economic security, and selflessness or non-attachment puts stop to exploitation. जय हिंद। मुझे श्री सुरेंद्र पोखरवा साहब ने कुछ प्रैक्टिकल विषय में इसके विषय में बताने को कहा था, तो हमने एक छोटा सा प्रयोग किया था कि दीपावली पर हम घर की सफाई करते हैं और कई बार ऐसा होता है जो चीज जहां पिछले साल रखी थी दीपावली पर उसको वहीं से उठाकर साफ करके वापस रख देते हैं। इसका मतलब सारे मौसम बीत गए, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, शादी ब्याह मौत मरण सब बीत गए, हमें जरूरत नहीं पड़ी, और भी घर का कोई भी काम हुआ हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब है हम उसके बिना रह सकते हैं। महावीर ने कहा था कि आपकी कसौटी जीवन की ये होनी चाहिए कि आप कितने कम से कम में रह सकते हो। शटलेशिया का उदाहरण भी हमारे यहाँ इसीलिए दिया जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप है, आपके मन की क्या दशा है कि आप पूरे पेड़ को काटना चाहते हैं केवल जामुन फल खाने के लिए, या बड़ी डालों को काटना चाहते हैं, या छोटी डालों को, या गुच्छों को, या केवल पके हुए को, या फिर नीचे जो प्रकृति ने प्रदान किए हैं उन्हीं से आप अपना पेट भरना चाहते हैं। तो आपकी मनोदशा, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आप अपरिग्रही हैं अथवा नहीं। तो हम एक प्रयोग ये कर सकते हैं कि दीपावली पर उन चीजों को निकाल दें जो पूरे साल काम में नहीं आई हों, और जिस प्रकार हमने 10-20 दुकानें घूमकर चीजों को खरीदा है, उस प्रकार हम 10-20 गलियों में घूमकर ये देखें कि किनको उनकी जरूरत है और अच्छी तरह से अच्छी स्थिति में उनको पहुंचा सकें। एक दूसरा प्रयोग जो कि एनिमल एड चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर में हो रहा है बाय जेम्स ई मायर्स एंड एरिका के द्वारा, मैं समझती हूँ वह भी एक I think that that is an aparigraha demonstration center on how to be with animals without the principle of ownership or possessiveness. These days, all over the world, people love and care for the animals they own, but do not have an awareness or connection with the billions of animals that would be killed or slaughtered in the factory farms or slaughterhouses. In fact, aparigraha or non-hoarding is suggesting our relationship with the animal that should be living with them, but not dominating, owning, torturing, killing, eating any of them. तो इस प्रकार हम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हमारी दृष्टि अपरिग्रही हो, हमारा जीवन अपरिग्रही हो, हमारी आर्थिक अर्निंग्स अपरिग्रही हो, और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी बन सकें। जय हिंद। आपके ऑब्जर्वेशन और प्रश्न आमंत्रित है।
बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। अच्छा अनिल साहब, डॉक्टर अनिल जैन। सबको म्यूट किया हुआ है तो प्लीज। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा, आपने बहुत ही बढ़िया और माइंड प्रोवोकिंग लेक्चर दिया, थैंक यू वेरी मच। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि अपने इंडिया में एक कहावत प्रचलित रहती है, संतोषी सदा सुखी। तो जो अधिक परिग्रही है वो सुखी होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। वे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक बच्चों की किताब में अभी बचपन से पढ़ी थी और अभी तक याद है कि एक कुम्हार वो सड़क के किनारे पर घड़े बेच रहा था और ईंट लगा करके सो रहा था, दोपहर थी, गर्मी का समय था। तो ऐसी सेठ जी एक वहां से निकले तो उनको ख्याल आया कि अरे इतने कष्ट में हैं, तो उसको उठा करके कहा, अरे भाई तू इतने कष्ट में क्यों है, मैं तेरे लिए यहाँ पर शेड बनवा देता हूँ, उससे तुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो उसने कहा उससे क्या होगा भाई, तू अच्छी नींद सो सकेगा, और दूसरा ये है कि तुझे आराम से बैठेगा तो जगह रहेगा तो तुझे वो घड़े ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा अच्छे घड़े बिकेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, तो एक पक्की दुकान बना लेना। बोले उससे क्या होगा, जब तेरी पक्की दुकान हो जाएगी तो नौकर भी रख लेना, तू आराम से सोना। बोले वो तो मैं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, सोना ही है तो वो तो मैं अभी कर रहा हूँ, अच्छी तरह से सो रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि संतोष बड़ी चीज है। एक चीज मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हुए उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के लिए तो बहुत लिखा, लेकिन बाकी के जो छोटे प्राणी हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, उनके बारे में विशेष नहीं मिलता है। हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर संज्ञाओं का जिक्र आता है, वही नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं चार, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो परिग्रह के बारे में ये सभी जीवों के होती हैं चारों संज्ञाएं। तो इसके बारे में क्या किसी वेस्टर्न थिंकर ने कोई प्रकाश डाला है, उस पर जरा हम कहना चाहेंगे। वेस्टर्न थिंकर ने इस प्रकार बात नहीं की, क्योंकि वे जैसे जैनिज्म पृथ्वी काय, अपाय, तेजोकाय, वायुकाय, वनस्पति काय की बात करता है, और काय मन शरीर और उनमें चेतना की बात करता है, तो इस प्रकार वे चेतना की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं कि खान में जो पत्थर है वो सचेतन है, जैनिज्म कहता है, और हिंदू फिलॉसफी कहती है कि वो शिव का शरीर है। शरीर तो जिंदा होता है, शव होता है मृत। तो वहां केवल बात इसको इस तरह लेते हैं कि जो पोजेशन है वो मटेरियल पोजेशन में अपने सेल्फ को हम इतना डाल देते हैं कि देन वी बिकम मिजरेबल, बिकॉज पर वो सेल्फ को कैसे प्राप्त करें इसकी भी बात नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान के द्वारा आप आत्मा का ध्यान करो, आत्मा के गुणों का ध्यान करो, कि भाई हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले हैं, सुख तो हमारे अंदर ही है, पदार्थों में नहीं है। इस प्रकार की बात वो नहीं करते, कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि चूंकि मटेरियल से लगाव है, वो केवल इसका रीजन बताते हैं कि क्यों आप दुखी हो, क्योंकि आप मटेरियल से अटैच्ड हो। तो इस प्रकार हमको इस फिलोसफिकल इस मुद्दे को तो और आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी तरफ से ये एक तरह से उनको इस बात को समझाना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार जीव और चेतन, ये दोनों अलग तत्व, भेद विज्ञान के द्वारा हम इसको समझकर ही हम अपरिग्रह से मुक्त हो सकते हैं। ये सुलेख जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, श्री सुलेख जी। हाँ बताइए। सुषमा जी बताइए। हाँ सर। मैनी थैंक्स। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम जैन साहब, बहुत अरसे बाद आपके दर्शन हुए और आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं वही कहने वाला था कि कई साल पहले मैं जयपुर आया था, आपने बहुत बड़ा वेलकम किया, आपके घर में रहकर मुझे अभी सोच रहा था, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट भी दिया, आपसे काफी बातें भी हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का लेक्चर सुनकर के तो मैं ऐसा लगा कि क्या पता नहीं, मैं ये चलता ही रहे, लेक्चर बंद नहीं हो। एनीवे, दो तीन मेरे कमेंट्स हैं। नंबर वन, ये जो आपने आज लेक्चर दिया है, अगर ये आपका रिटर्न अभी जो आपने दिया है, अगर ये रिटर्न फॉर्म में हो तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, वी विल लाइक टू पब्लिश। ओके सर। नंबर टू, I would like, we have, Jain chairs, Jain professorships and lecturership at many universities. More are coming. As of right now, when I'm speaking to you, we are at 28 universities in America and Canada.
and we have also established Acharya Mahapragya professorship at Ghent University in Belgium. 1 minute सर, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, 1 मिनट. Aji, can you hear me? नहीं, सुषमा कोई जी? डिस्टरबेंस हमारी तरफ तो नहीं है। अच्छा वो कहीं चली गई है, मैं उन्हीं से बात करना चाहता था। नहीं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो आ रही हैं वापस. ओके ओके, हाँ, let us hold for a minute. I think she will be back. आ गए. सर आप बोलिए सर. हाँ, आर यू बैक? हाँ, अभी आपके दर्शन नहीं हो रहे. हाँ आप बोलिए सर. मैं ये आप कह रहा वीडियो था, ऑन करिए सुषमा जी. अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज. वो निकल रही है बार बार. अभी नहीं हो रहा है. चलो खैर, बिना वीडियो के ही सही, आए तो सही. कैन यू हियर मी सुषमा जी? अभी है नहीं. इंटरनेट गया उनका. हाँ वो नहीं है. आ रही हैं. Let's wait because it was such a beautiful lecture encompassing many things. In the meantime, आप सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. Same to you, आपको sir. भी. So it's a beautiful day that you have chosen for these kind of events. So appreciate. और आज के दिन महावीर, भगवान महावीर के जो अभी उपदेश अभी सुने और भी सुनते आए हैं, उनको अपने कैसे जीवन में लाएं, that what we have to think. तो जैना की तरफ से आज सुबह ही every week there is a communication, there is a letter that comes out, and today's letter उसमें ये था कि कम से कम हम we should stop buying. सर आप फरमाइए. हाँ सर आप फरमाइए. आपका वीडियो ऑन कर लीजिए. That's good. Now we know you are. फिर चला गया. आपका दोबारा ऑन कर लीजिए. अभी आया था. नहीं आ रहा है. अब आ गया. Can you hear me? सुषमा जी? जी सर. Hello. Can you hear me? Yes sir. Okay. What I was saying that we have now at 28 universities our presence in America and Canada as well as in Ghent in Belgium. So I would like to arrange your lectures at 1 or 2 places, not many places to start with, and you and I will communicate when we can do that. Okay, it will be a question answer. It will be a very good lecture, and we need to promote that, your whole philosophy. Beautiful lecture. Having said that, whenever we talk over here, quickly, whenever we talk over here, we say Jainism stands for 3 A's. 3 A's. Ahimsa, Aparigraha, and Anekant. Yes. We say that all the time, 3 A's. Now, अहिंसा की बात तो जो है, वो हमारी एक इंद्री में हमारे जीवन में है जैनियों के. उसके बाद तो जो ना वो काफी कुछ जो ना you and I can talk कि एक इंद्री के बाद जो ना सूक्ष्म हिंसा की बात तो है, उसके बाद नहीं, ज्यादा नहीं है हमारे चलन में. अपरिग्रह जैनियों को देख करके लगता नहीं है कि अपरिग्रह है हमारे यहाँ. I am really coming to, is it really when we say 3 A's of Jainism, वो हमारी कम्युनिटी में हमारे जीवन में है या नहीं है? शास्त्रों में तो है, भाषणों में है. ओके. तीसरा, अनेकांत को कोई जानता ही नहीं है. हम अगर ये होता तो हम 4-5 संप्रदाय आपस में लड़ते नहीं. एक दूसरे को हम कहते हैं आई एम द ओनली वन. तो ये सारा का सारा अभाव क्यों हो रहा है? Why are we not bringing all this together and saying कि भाई हम बातें नहीं करें? और आज महावीर जयंती के महावीर जयंती का दिन है. सर, महावीर जयंती की पूर्व संध्या है. महावीर स्वामी ने कहा था कि श्रावक और श्राविका साधु साध्वी के अम्मा पियरो हैं. दे आर द पेरेंट्स ऑफ द मॉन्क्स. अगर पेरेंट्स चुप रह जाएं कि वो जो मर्जी करे, वो जो मर्जी दादागिरी कर रहे हैं, जो मर्जी अहंकार कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, और हम पेरेंट्स चुप हैं, तो ये गलती हमारी है, उनकी नहीं. हम एक नहीं हो रहे क्योंकि हम प्रेशर नहीं कर रहे, हम ये बल नहीं डाल रहे कि हमको एक होना पड़ेगा. आप सब एक होगे तो ही हम दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. इट इज आवर ड्यूटी टू डू बिकॉज वी आर द पेरेंट्स.
पहले तो थे आज- वो नहीं है। आज तो महावीर पहले सुषमा, आज महावीर जयंती के दिन हम जितने भी यहाँ पर इतने विद्वान बैठे हैं, क्या हम ये नियम ले लें कि हम ये जो आपने अभी कहा है उसी हिसाब से चलेंगे, उन्हीं साधुओं के पास जाएंगे, उन्हीं गृहस्थों के पास जाएंगे जिनमें सांप्रदायिकता नहीं है? हम बातें तो हैं? ना सर ऐसा सुलेख है, भाई, घर तो सर ऐसा सुलेख है, भाई। घर तो सबको हाँ जी। रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, घर मैं तो जरा सबको रखना पड़ता, घर तो रखेंगे सर, अपना अपना घर रखेंगे, लेकिन किसी तरह का अतिरेक नहीं होना चाहिए। घर रखने में, घर तो अलग होते हैं सबके, पर अतिरेक नहीं हो, भीतर में वो सब एक सहकार से रहे, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये सुलेख जी, सुलेख भाई, एक आपने ये जो कहावत बताया ना, है, ये मुंडे मुंडे मते भिन्ने, तो उसमें कोई अगर हर कोई की हर अपनी मान्यता है, मतलब 4 घर में है तो 4 मान्यताएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये है कि जहां पर जरूरत है अपने को सबको संगठित और एक सूत्र में रहना है, उसकी आवश्यकता है। नहीं तो घर में 2 लोग हैं, दोनों के विचार भिन्न हो सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो वो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। सवाल ये है कि हम एक साथ बैठ करके किसी एक लाइन पर बात नहीं करना चाहते हैं, वो एक परेशानी है। ये पोखरना साहब कहिए, साहब आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना है कि मैं गए 20 साल से देख रहा हूँ, लगभग 20 साल से इसमें, इस परिस्थिति में काफी चेंज हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, मतलब, और पॉजिटिव साइड में बदलाव हुआ है। सबसे पहला ये कि जीतो जो बना है, जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब चाहे वो ट्रेड के नाम पे हो, कुछ भी नाम पे हो, लेकिन मैं उसका मेंबर हूँ यहाँ पे, और मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं। एटलीस्ट एक मंच है जिसपे दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक सब एक मतलब मंच पे आके बैठे हैं, ये बहुत हेल्दी साइन है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जैसे ये जेएस बनाई है, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर, अब इसमें भी हम हर वीक मतलब मिल रहे हैं, उसमें दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है, सभी है, एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। इसी ढंग से अभी जैसे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर भी 4 जैन आचार्य आए थे, अलग अलग संप्रदायों के। मतलब हमको क्या करना है कि इस प्रोसेस को कैसे एक्सिलरेट किया जाए, मतलब टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में कैसे एक्सिलरेट किया जाए, इसको ये करने की जरूरत है। तो मेरा एक सुझाव, मतलब वापस मैं जो बार बार दे रहा हूँ, वो ये है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो विश्व अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, उसको हम 200 कंट्री के अंदर या जहां जहां पे जैनियों का प्रभुत्व है, वो सभी साथ में मिलके एटलीस्ट एक कार्यक्रम हम विश्व अहिंसा दिवस साथ में मनाएंगे। मतलब अगर ये कर ले, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने प्रयास किए हैं, बहुत से आचार्य जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। मतलब तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस दिशा में बहुत हाई स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसे 1 या 2, मतलब महावीर जयंती पे अहमदाबाद में पूरे मतलब सभी संप्रदाय के लोगों का जुलूस निकलता है, ये बहुत से शहरों में होता है। मतलब इन चीजों को इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उससे क्या है कि वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब मैंने कई साइंटिफिक सेमिनार देखे जिसके अंदर आचार्य भंडारी साहब अभी कुछ कहेंगे? साहब भी हैं। हाँ, तो इसको मैं करने भंडारी की साहब कहें उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ सुलेख जी को, कि कल ही एक वेबिनार हुआ था, जिसके अंदर वेबिनार में 1000 लोगों ने अटेंड किया। उसके अंदर श्वेतांबर साधु, मूर्ति पूजक, स्थानक वासी, दिगंबर साधु सभी थे, एक ही मंच पर थे। नए पद्म सागर जी थे, विमल सूरीश्वर महाराज साहब थे, देवनंदी जी थे दिगंबरों की साइड से, और प्रज्ञा सागर जी थे, और ऋषि मुनि जी थे। ये सब एक साथ वेबिनार में आए थे, और सबों ने एक साथ ही आह्वान किया था कि हम सब साधु भी एक हों, ऐसा फोरम बने। ये एक उनका कंक्लूजन था, और समाज तो खैर एक हो, वो तो आह्वान था ही। तो ये शुरुआत तो हुई है, और 1000 लोगों का वेबिनार मैंने पहली बार कल देखा। जस्ट ये आपकी जानकारी के लिए अपडेट दे रहा हूँ। हाँ, भंडारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ज़रा सुषमा जी के लेक्चर के बारे में कुछ कहना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, excellent lecture, and I am very happy that she is now part of JAS, so will benefit by her wide knowledge and thinking. प्रश्न मेरा ये है कि हम अपरिग्रह कह के हमने उसको छोड़ दिया। हमने एक मॉडल या बिजनेस मॉडल या लिविंग मॉडल
या एक इकोनॉमिक मॉडल उसका नहीं बनाया, तो एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए। उसमें आप कंपेयर करिए कि आप अपरिग्रह रखें तो क्या फायदा होगा, अपरिग्रह न रखें तो क्या फायदा होगा। और एक कंपैरेटिव मॉडल, आई थिंक JAS is quite competent to go into this model and बिल्कुल। present to the world, because I Yes. think the Westerners all miss this point. They are supposed to be big thinkers, Freud and this and that. She talked about so many philosophers and economists, but they miss this point of there are more advantage because of aparigraha, not only at personal level, national level, international level, global level, economic. and this point has not been really brought out. तो एक तो अगर आप हमको कुछ गाइड करें तो इसमें एक प्रॉपर एक ऐसा मॉडल बनाएं जो जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिश होना चाहिए, not in our local magazines. I mean, that is the kind of thing we want to do. और दूसरा ये पॉइंट था कि ये मुझे बड़ा ताजुब है कि लोगों ने अपरिग्रह जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने बिल्कुल इसको माना नहीं, और हम भी इसको छोड़ते जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। मतलब वी आर हैविंग ए वेस्टर्न मॉडल ऑफ लिविंग एक्चुअली, we are adopting that, at least many people I know. I am not talking of everybody, it's not a general statement. तो ये मुझे याद आता है कि मैं एथेंस गया था समनी जी के साथ फिलोसॉफिकल कांग्रेस अटेंड करने के लिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि जैसे समनी जी अपना लाइफ बिता रही हैं विद फ्यू पोजेशंस, ऐसा हो सकता है। मतलब दे आर नॉट इवन अवेयर दैट सच ए थिंग इज पॉसिबल। मतलब दे आर टॉट फ्रॉम द राइट फ्रॉम चाइल्डहुड दैट दिस काइंड ऑफ लिविंग इज नॉट पॉसिबल। ये मिथ जो है ये हमको हटाना पड़ेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये दिया, पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मॉडल बनाने में हमें मार्गदर्शन करें और हम इसको एक जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में पब्लिश करना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। I'll try my level best, sir, to have a economic model based on aparigraha. So I'll try. और जो जैसा पोखरना साहब ने बताया, JAS is one such thing where all religions meet. तो science is where all religions meet, religions divide and science unites. और एक और बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है जैन डॉक्टर्स एसोसिएशन अहमदाबाद में, उसमें सभी सेक्ट्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड, और ऑफ कोर्स जैना भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई हैं, पर दिस एफर्ट इज नॉट एनफ। Actually, there are other causes. Even sadhus want to unite, but they have their own compulsions and requirements, कि जिसके वजह से संभव नहीं है। तो हम ऐसे फोरम को आगे एडवांस करें तो मेरे ख्याल से we can achieve that goal. Thank you very much. डॉक्टर जीवराज साहब का कुछ प्रश्न है। डॉक्टर साहब बोलिए। जय जिनेंद्र साहब, ये बहुत समय के अनुसार बहुत अच्छा लेक्चर रहा सब, और भंडारी साहब ने जो कहा उसी के ऊपर में मैं कुछ विचार रखना चाहता था। ज्यादातर पॉइंट भंडारी साहब ने क्लियर किए ही हैं। अपरिग्रह जो है वो पर्सनल लेवल पर होता है, उसके अंदर में मेरी ये समझ है कि उसकी आसक्ति नहीं है। जैसे समणी जी का उदाहरण दिया कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट में अपना जीवन यापन करते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे श्रावक लोग हैं जिन्होंने नियम ले रखा है कि हम इतनी ही चीजों में अपना काम चलाएंगे, बट दे आर ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में ऐसा नहीं है कि मेरे पास में एक स्टील प्लांट है, दूसरा लगाऊंगा तो वो परिग्रह हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक मॉडल जो बनाना है, तो अपने शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि एक कुमार के पास में जो घड़े बनाता है मिट्टी का, शकदाल नाम से, उसकी 500 दुकानें थी और इतना बड़ा बिजनेस था, फिर भी वो अपरिग्रही था। भगवान ने उसकी तारीफ की है
तो ज्यादा रखना या ज्यादा इंडस्ट्री में आगे बढ़ना ये परिग्रह नहीं है, वो भी अपरिग्रह में ही हो जाता है। और हमारे देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बहुत सारी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट अपरिग्रह रह करके, यानी अपने खुद की जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम अपनी आसक्ति नहीं रखेंगे, बहुत लिमिटेड मात्रा के अंदर में अपना जीवन। अब टाटाज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनकी, बट वो खुद बड़े सिंपल ढंग से रहते हैं। तो ये एक मॉडल बनाते वक्त हम ध्यान रखें कि हमारे महावीर स्वामी के जमाने में भी ऐसे है परिग्रही। एक वो कुचीकरण का उदाहरण आता है जिसके पास में 10,000 से ज्यादा गायें थी, लेकिन वो है परिग्रही। तो अपने जितने शावक हुए सर, वो कितने उनके पास वैभव संपत्ति थी, आनंद शावक से लेकर स्पूनिया तक। आप सही फरमा रहे हैं। और एक ये जो कहा है कि अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। While learning and while earning, one should think that I am not going to die. Then only he can learn and then only he can earn. But if you have earned a lot and if you have learned a lot, then what to do? I can die any moment. So you try to distribute it to the needy ones. Distribute your learning and distribute your earning also. So आप ठीक फरमा रहे हैं कि अर्निंग का मना नहीं है, पर आसक्ति का मना है। और आसक्ति नहीं होगी तो वो जितना उसका लाभ हो सके ज्यादा लोगों को मिलेगा। आप सही फरमाते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। और ये ऐसा ही अपने यहाँ पर ये आता है, सूत्र में भी आता है कि मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा है। दूसरा एक ये अपने यहाँ उसका उदाहरण आता है, भरत चक्रवर्ती का 6 खंड का राजा था, फिर भी वो आसक्ति रहित था, तो उसका उदाहरण सब आता है। धर्मचंद जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सब फरमाइए साहब। मैं तो आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी सिंघवी को पहले बधाई देना चाहूंगा कि महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने बड़े समुचित विषय पर अपना बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है परिग्रह पर। और इस पर जो चर्चा हुई है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, विशेष रूप से भंडारी साहब ने जो एक मॉडल की बात की है और बड़ी महत्वपूर्ण है। और जीवराज जी साहब जैन जो कह रहे हैं कि भाई अर्निंग वो बुरी नहीं है, लेकिन अर्निंग क्यों करनी ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अर्निंग करने के साथ उसका उपयोग क्या करना है ये साथ में हो। अगर वो मानवता के लिए करता है अर्निंग, दूसरों के लिए करता है जब, तो ठीक है। नहीं इकट्ठा करता है तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी कि मैं तो मेरी आसक्ति नहीं है और इकट्ठा किए जा रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि इकट्ठा तो कर रहे हैं, मेरी आसक्ति नहीं है, झूठा भ्रम ना हो। एक जो डेवलपमेंट की बात आज की जाती है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट के साथ में ये जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम कैसे कोरिलेट करेंगे इस अपरिग्रह को, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ऐसी मेरी वो है जिज्ञासा है आपसे जानने के लिए। और दूसरा और प्रश्न है कि जब अपरिग्रह, ये परिग्रह जो है वो इंस्टिंक्ट है, पोजीशन का भाव हमें पेड़ पौधों में भी मिलेगा, चींटी में भी मिलेगा, पक्षियों में भी मिलेगा, मनुष्य में भी है, इंस्टिंक्ट है ये। उस इंस्टिंक्ट पर कैसे काबू पाया जा सकता है और कितनी मात्रा में पाया जा सकता है, क्योंकि जब तक पूरा कषाय रहित कोई ना हो तब तक पूरी तरह अपरिग्रह से रहित नहीं होता है। चाहे बाहर से छोड़ दे, लेकिन भीतर की जब तक कषाय मौजूद है पूरा अपरिग्रह नहीं होता। फिर भी उसका परिमाण किया जा सकता है। ऐसा भगवान महावीर ने हम सब गृहस्थों के लिए सजेस्ट किया है कि परिग्रह का परिमाण कीजिए, इच्छाओं का परिमाण कीजिए। उन्होंने इच्छाओं को समाप्त करने की बात नहीं कही, क्योंकि इच्छाओं को समाप्त करके हम जी नहीं सकते, गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। तो इच्छाओं का परिमाण करते हुए कैसे डेवलपमेंट को एक स्वरूप दिया जाए और कैसे इंस्टिंक्ट होते हुए भी इस पर काबू पाया जाए, इन 2 बातों पर आप प्रकाश डालेंगे तो और विषय की स्पष्टता होगी। आपने इंस्टिंक्ट का जवाब तो आपने खुद दे दिया। अभी पिछले कर्मों से युक्त होकर आए हैं तो इंस्टिंक्ट तो है, और परिग्रह का परिमाण करते हुए, कषायों को कम करते हुए इससे हम काबू पा सकते हैं। आपने जो ये बात कही कि विकास अपरिग्रह से कैसे होगा, विकास का मॉडल जो महावीर कहते हैं कि जीव मात्र की सुरक्षा से विकास होगा। आप एक इंद्री खान में पत्थर कैसे बढ़े वो उपाय करना पड़ेगा, सोर्स में पानी कैसे रहे ये उपाय करना पड़ेगा, वायु प्रदूषित न हो ये उपाय करना पड़ेगा, और इस प्रकार वनस्पति वन के वन सूख न जाए ये उपाय करना पड़ेगा। तो हमें पहली बात तो जीवों की रक्षा
करना सबसे पहला दायित्व, ये समझना कि इसमें प्राण है, छोटे से लेकर बड़े तक में ये भावना पैदा करना कि इसमें प्राण है। इनको भी वैसी ही तकलीफ होती है जैसे कोई बहरा, गूंगा और अंधा को मारे काटे तो दर्द तो उसको होता है, कह नहीं सकता। तो ये भावना होने पर हम जब उत्पादन करेंगे तो वो उत्पादन, अथर्ववेद में कहा है कि हे भूमि मैं तुझसे लेता हूँ, तुझे खोदता हूँ, लेकिन पुनः संग्रहण के लिए वापस संग्रहित हो जाए। तो संरक्षण के उपाय साथ साथ करने पर विकास होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और नहीं तो कुछ देर के लिए अर्निंग हो जाएगी लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। भावी पीढ़ियों के लिए हमको विकास तो वो करना होगा जो सस्टेनेबल हो, और उसमें प्राणों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कालिदास कहता है क्षणमप्यवतिष्ठते, जो एक क्षण भी जीवित रहता है वो लाभवान है। तो मतलब हम इस प्रकार जीवन को स्थायी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जो ये विकास का कर्मकांड- स्वरूप समझा जा रहा है ना, कर्मकांड विकास के नहीं स्वरूप करने को का हमको, विकास के स्वरूप को बदलना होगा कि विकास इसमें नहीं इसमें है, ऐसा बताना पड़ेगा बिल्कुल कि बिल्कुल विकास बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बड़ी मंजिलें बनाने में नहीं है। विकास, बिल्कुल। देखिए सड़कें बनाना तो आवश्यक लगता है कि सड़कें तो होनी चाहिए, पर अरे होनी विकास चाहिए, के पर जो वापस मानदंड पेड़ आज, उगाओ ना। पर सड़कों के किनारे हाँ। पेड़ फिर से लगाने में क्या दिक्कत है, फिर लगाओ। हाँ भाई आप उठा रहे हो तो हाँ, तो संग्रहण करो, विकास फिर का जितना स्वरूप ले रहे प्रस्तुत हो करने की वापस आवश्यकता है कि दो। विकास किसमें है। आज क्या है कि पैसा कमाना ही विकास समझा जा रहा है, और पैसे को इकट्ठा करना, उसकी चीजें बनाना, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक डेवलपमेंट है या आत्मिक डेवलपमेंट है, वो गौण होता जा रहा है। तो उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आत्म विकास नहीं होगा तब तक विकास है नहीं। पोखरना साहब कुछ कैसे कहें उससे स्वरूप को पहले, प्रस्तुत किया जाए? ये कछारा साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। कछारा साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अच्छा ठीक है साहब, पोखरना साहब बताइए। हाँ, इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं और ऐड करना चाहूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने एक 60 पेज की रिपोर्ट बनाई थी आज से 25 साल पहले, और वो प्लानिंग कमीशन के अंदर डिस्कस हुई थी मतलब। और अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट वापस आया है। बेसिकली क्या है कि हमको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, वेरी बेसिक फंडामेंटल्स मतलब। और फंडामेंटल्स में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि एक पेपर हमने देखा था कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वर्ल्ड ओवर, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर उसमें से बाकी निकाल दे तो मोस्टली जो है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो मतलब उसके कारण हो रही है। उस हर एक एक्टिविटी के कारण इस मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है मतलब। ये बहुत क्लियरली आ चुका है मतलब। अभी मैंने कुछ डेटा देखे हैं कि जो वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, या भारत की 6000 ऐसी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनमें से लगभग 80% या 90% कंपनियां ऐसी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, और सब हमको हिप्नोटाइज कर रखा है। वो सब कंपनियां बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जनरेट कर रही है, और जो लिविंग बीइंग्स है उनको खत्म कर रही है। तो गए 50 साल के अंदर पृथ्वी के ऊपर है जो लाखों करोड़ों जीव खत्म हो गए मतलब। कोई साइंटिस्ट या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी बात नहीं करता, ना आपका इकोनॉमिक टाइम्स है या अखबार है उसकी बातें करते हैं मतलब। मैं इसरो में था तब मैं देखता था कि जब वो हमारा रॉकेट छोड़ते थे तो वो रॉकेट ऊपर जाता था तो सब साइंटिस्ट का ध्यान उस पर रहता था कि उस पे है जो वो रॉकेट, वो सैटेलाइट ठीक ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पर मेरा ध्यान नीचे भी रहता था मतलब। और नीचे जो गरम गरम गैसें निकलती थी जिसका टेम्परेचर 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो बहुत हाई स्पीड से नीचे निकलती थी, तो कितने वायु काय के जीवों की हत्या होती है ये कोई साइंटिस्ट नहीं बताता मतलब। सब छुपाते हैं उन चीजों को मतलब। सच्चाई ये है कि हमको इस सच्चाई को पूरे लोगों को बताना पड़ेगा कि आप, और साइंटिस्ट जितने दुनिया भर के साइंटिस्ट है सब विकास की बातें करते हैं, लेकिन एक भी साइंटिस्ट एक चींटी नहीं बना पाया, एक घास की पत्ती नहीं बना पाया। लेकिन करोड़ों ऐसे जीव साइंस के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण मर रहे हैं, और भयंकर मतलब इतनी लार्ज क्वांटिटी में मर रहे हैं कि अभी पृथ्वी छठे महाविनाश की ओर आगे बढ़ रही है। तो हमको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, सिस्टम मॉडल वो बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच इसमें बनानी पड़ेगी, इन सबको कंबाइन करके मतलब।
ठीक है, बहुत बहुत आभार पोखरना जी। आप ये अपनी ऑडियंस में से कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? ये सिसोदिया साहब, हाँ, सिसोदिया और हेमल जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ साहब, बोलिए साहब। हाँ। अब मैं ये एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूँ किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। वो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी आप सर देखिए, आपका ये जरा स्क्रीन ठीक करिए ना, आपका दिखाई नहीं दे रहा है फेस। हाँ, बेटर। हाँ, यस। तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे एजुकेशन है उसको हम कैसे बदलें। जैसे अभी आप देखिए, अमेरिकन बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट इज द गोल, एंड ग्रीड इज गुड। तो इसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। दूसरी बात यह है कि फ्रॉयड ने कहा कि the root cause of all this ego is the body ego, the identification of the self with the body. That is the root cause of all attachment and all this kind of behavior. Therefore, as Sushma ji also mentioned, detachment can occur once you have the concept of soul. I am soul, I am not the body. जो भेद विज्ञान का जो है उसको हमें बढ़ाना होगा, और वो बढ़ सकता है अगर हम कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस करें। कायोत्सर्ग में ये सिखाया जाता है। तो हमने जो कुछ प्रयोग किए हैं और कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में, वहाँ हम उनको कायोत्सर्ग भी कराते हैं, और उसके परिणाम हमको एग्रेसिवनेस में भी किए हैं, लेकिन वो ग्रीड वगैरह ये जितनी और भी कषाएं वो भी कम हो सकती हैं। ये प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल्स एंड अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल, this we have to try to change, and this may perhaps bring some changes. Thank you. Yes. मैं एक बात कहना चाहूंगी। कौटिल्य हमारे भारत के अर्थशास्त्री कहलाते हैं। उन्होंने जब अर्थ की परिभाषा की तो कहा मनुष्यवती पृथ्वी रित्यर्थ। अर्थ का मतलब धन, वैभव, पैसा, ये नहीं कहा। अर्थवती पृथ्वी मतलब पृथ्वी का संरक्षण हो और उस पर रहने वाले मनुष्य आदि जितने भी जीव हैं, अगर उनका विकास नहीं होता है, उनकी क्षमता में विकास नहीं होता है, तो वो आर्थिक तरक्की नहीं मानी जानी चाहिए। तो इस तरह हम इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे कि वास्तव में आर्थिक संपन्नता क्या है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सिसोदिया साहब बोलिए साहब। जी जी, एक मिनट। सब लोग यही विकास की डेफिनेशन करते हैं कि जीडीपी को बढ़ाना है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर्स सब उसी को कहते हैं। हालांकि ये अब बीजेपी आई है, वो भारतीय संस्कृति को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि जीडीपी को बढ़ाइए। तो मेजर जो है विकास का वो जीडीपी हो गया, जीडीपी मैक्सिमाइज, जबकि ये गलत है। और उसमें वहाँ वेलनेस और हैप्पीनेस होना चाहिए, तो उसमें हाँ, तो अगर सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो वो एक तरह से संतुष्टि होगी। जेके मेहता ने बहुत सुंदर कहा कि अगर सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, वो संतुष्ट हो जाए, तो ये वांटलेसनेस, ये आर्थिक तरक्की, ये अर्थशास्त्र कहलाएगा। हाँ, मतलब ये है। हाँ, तो यही चीज है। ये हमें अपने एजुकेशन में लाना पड़ेगा, जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस बात को ठीक से समझे और उनका व्यवहार भी उस तरीके से बदले। हाँ, सिसोदिया साहब बोलिएगा, फिर वो हैनल भट्ट जी बोलेंगे। सिसोदिया साहब। सुषमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। काफी अच्छा लेक्चर था। वीडियो नहीं आ रहा आपका वीडियो नहीं, मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, अब कर देता हूँ। ऑन करिए। कह रहा हूँ
सबसे पहले बहुत बधाई आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं परिग्रह पे, वो एक पॉजेसिवनेस पे आ गई, मटेरियल पोजेशन, ठीक है। जैनिज्म में शायद दूसरी चीजें भी है, तो पहले Virtual अगर हम possession. क्लासिफाई कर दें उसको, ओनिंग द थिंग एंड मटेरियल पोजेशन, जितना भी डिस्कशन है ना इकोनॉमिक्स में, वो सारा मटेरियल पोजेशन पे होता है। जैसे एक होता है ओनिंग, डिटैचमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे इमोशनल लेवल लेते हैं, वो अंग्रेजी और संस्कृत और हिंदी का ये हमेशा गड़बड़ रहेगा, परिग्रह मीन्स डिफरेंट। तो मेरा ये था कि जैसे डिटैचमेंट है, मान लीजिए जैसे हम मुनियों का एग्जाम्पल देते हैं, तो मुनि तो इमोशनली भी डिटैच होते हैं, राइट। अब ये कि पर्सन है, अगर हम इफ वी आर पेरेंट्स, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, मतलब वो उस पे मत जाइए, मैं मुनि नहीं हूँ, ठीक है, मैं परिग्रह करूंगा टू फॉर द वेल बीइंग ऑफ माय फैमिली। उसको Yes. कैसे आप इसको कैसे आप डिटैच करेंगे? अच्छा, जब आप इमोशनली अटैच हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मेरा परिग्रह मेरी उससे मतलब लिमिट से ज्यादा है या कम है, बिकॉज आप इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी ड्यूटीज हैं। तो ये वाला जो कंफ्यूजन है, ये अगर हम कहीं करेंगे भी तो हाउ टू डिस्टिंग्विश, डिटैचमेंट इज नॉट इजी, हर कोई साधु नहीं बन सकता, हर कोई मुनि नहीं बन सकता। आपका तो हम प्रश्न सिर्फ वाजिब है मटेरियल, कि आपका प्रश्न वाजिब है कि मोह के बिना हम कैसे परिग्रह से छूटेंगे, ठीक है। मैंने भी एक प्रश्न छोटी सी तब किया था कि आप कहते हो कि मोह को जीत लो, तो वहां बताया गया कि मोह में और प्रेम में अंतर है। मोह आप अटैच हैं बच्चे से, ऑल राइट, आप उनकी इंद्रियों का विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो, शरीर का विकास हो, वो सब दीजिए, वो सब कीजिए, लेकिन केवल प्रदर्शन के लिए ये चाहिए बेटा, तो इससे आपका विकास नहीं होगा। केवल टू शो ऑफ, किसी और को दिखाने के लिए करना है, वो नहीं होगा, या केवल नकल के लिए करना है। तो एक तो ये डिस्टिंक्शन अपने को करना होगा कि हमारी जो नीड है वो हमारे शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार के विकास के लिए उसको परिग्रह माना ही नहीं है। जो चीज हमको इन सब विकास के लिए जरूरी है वो तो परिग्रह कहलाया ही नहीं है। इसलिए कहा कि परिमाण करो, और परिमाण जैसे कहा कि भाई जो फ्यूटाइल चीज है, अब जैसे उपभोग परिभोग परिमाण, तो क्या भाई 14 प्रकार के काम मत करो, ऐसे धंधे मत करो जिसमें हिंसा करनी पड़े, मारना पड़े, चमड़ी उतारनी पड़े, ये करना पड़े। कम से कम इतना तो मत करो, रोटी कपड़ा मकान कुछ और तरीके से भी अपना सकते हो, वो तरीका अपनाओ। तो इस तरह हमें क्या हमारे लिए एसेंशियल और हमारे डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल में तो कोई ये कहेगा भाई वो भी ये करे, दुनिया ये कर रही है, हम भी ये करें, तो वो नहीं, उसको ये समझाना होगा या हमको भी ये समझना होगा कि हमारे वास्तविक विकास के लिए क्या जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो आप वॉलंटरी है, आप इसके लिए कोई स्टैट्यूट नहीं बना सकते कि भाई अब किसी शहर में क्या चीज जरूर, किसी के लिए कार नेसेसिटी है और किसी के लिए कार नेसेसिटी नहीं है, तो फर्क पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम, लेकिन असली में आपकी सेल्फ चेतना का विकास किससे हो, आप कैसे दूसरों के साथ सहयोग कर सकें, सहानुभूति कर सकें, ऐसे भाव आप में पैदा हो। तो एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में आप हवा भरिए, तो उसका जो परत है वो मोटी है, जैसे हवा भरेंगे तो परत पतली होगी, और मोटा करेंगे तो और पतली होगी। तो एक व्यापकता लाने के लिए ये करना चाहिए। नहीं, मैं कहीं और मतलब हम शायद डिफरेंट टेंजेंट पे बात कर, मटेरियल पोजेशन, ओके, विकास भी आ गया। नाउ सपोज अ यूनिवर्सिटी, राइट, एक यूनिवर्सिटी फ्रूगल बजट पे चल रही है, राइट, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑन अ गुड बजट, ठीक है, परिग्रह तो हुआ। गुड बजट यानी बेटर फैसिलिटीज, राइट। मान लीजिए जैसे आपके पीछे खूब सारी बुक्स है, राइट, नाउ यू आर एक्सपोज टू मैनी थिंग्स, परिग्रह तो हुआ ना हिसाब से। अगर हम मटेरियल पोजेशन कहेंगे तो देयर यू ओन 100 बुक्स, ठीक है, आपने उसको दूसरों के लिए भी खोल दिया, मान लीजिए, वो एक अलग इमोशनल चीज होगी। तो अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, मैंने बड़ी बनाया सो दैट मैनी पीपल कैन कम एंड गेट बेनिफिटेड। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा डेवलपमेंट एंड पोजेशन का, कहाँ पे डेवलपमेंट रोका जाए, कहाँ पे पोजेशन को लिमिट किया जाए, मेरा वो प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दिया था पृथ्वी का,
तो जो भृगु ऋषि हैं उन्होंने कहा था, वो संस्कृत का श्लोक मुझे याद नहीं है, पृथ्वी को इतना ही दुहिए जितना बछड़ा गाय को दुहता है, उतना ही दूध, राइट। अब क्या हुआ कि आप डेवलपमेंट चाहते हैं, आपको कोयला चाहिए, आप ब्लाइंडली माइनिंग कर रहे हैं, आपको आयरन चाहिए, आप ब्लाइंडली माइनिंग कर रहे हैं, आपको फॉर डेवलपमेंट यू नीड पेट्रोलियम, गैस, एवरीथिंग, आप ब्लाइंडली, सो मच सो कि 25 साल बाद हमारे पास बचेगा ही नहीं। मैं वो कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स कहाँ पे जाके अटकेगी, परिग्रह क्या है, ओनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मेरा वो। तो अगर अब जब तक यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, आप सही कह रहे हैं, वस्तुस्थिति को देखते हुए जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम रियल सुख इस विकास के बिना भी पा सकते हैं, विकास को कम करके भी पा सकते हैं, और उसका जरिया ये है, कम डेवलपमेंट होगा तो भी हम सुखी रह सकते हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, ये भीतर का भाव नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से तो हम सारे वेस्टर्न पैटर्न पर ही चल रहे हैं कि सुख सुविधा। अब एक तो होता है कि आप अपने शरीर को इतना तपाओ कि आपको पंखे की जरूरत महसूस नहीं हो, एक ये हो कि मेरे तो हर कमरे में पंखे के साथ एसी भी होना चाहिए। तो दो तरीके हैं। तो क्या हम थोड़ा इस प्रकार का तप संयम करके अपने आप को इस तरह तैयार करने के लिए राजी हैं कि हम इतने सशक्त हों कि हमको इनकी जरूरत कम पड़े? दो तरीके हैं। तो एक तो हम अपनी संतान को ऐसा तैयार करें, मतलब पहले हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा हर एक चीज के लिए, पहले कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, त्याग के बिना तो त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के बिना भोग करेंगे तो अपरिग्रह नहीं आएगा। त्याग तेन त्यक्तेन भुंजी था, माँ गृधा कस्य धनम, ये सब कुछ है, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत कम है और सब कुछ मिलना चाहिए, ये जरूर, ये तो करना पड़ेगा। वही तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पे कल्चर डिफरेंस आ जाता है, हिंदू ये तो कल्चर करना और पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा, उसके बिना सुख नहीं। सुषमा जी, जिन्होंने पहले अभाव की जिंदगी जी है ना, उनको बहुत ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा तड़प रहे हैं, ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं जिन्होंने अभाव की जिंदगी जी है। और जिन्होंने फिर भी समृद्धि की जी, उनकी इच्छाएं हो सकता है अल्प हो, पर जिनके पास अभाव था उनकी इच्छाएं ज्यादा हैं। वो ठीक है, पर उनको अंतर मन से पूछो कि मैंने 3 साल काम किया, उन्हें समझ तो है नहीं कि इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, पहले अभाव अनुभव किया है, तो वो अभाव उनको ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान की बहुत जरूरत है कि ज्यादा की जरूरत क्यों नहीं है, ज्यादा की जरूरत क्यों नहीं है, ये समझ नहीं है, इकट्ठा करना है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने 3.5 साल 4 साल अपरिग्रह पर काम किया, मुझे लगता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। मतलब नहीं, वो ठीक है, आप में ज्ञान है ना, आप में ज्ञान है, इसलिए आप वो वैसा अल्प में भी काम चला लेंगे। हमारे पास तो 2 ड्रेस होगी तो भी हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान है, उसकी समझ है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा चाहिए उनको तो कैसे समझाया जाए, वो तो कहेंगे मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब जगह दौड़ते रहेंगे ना। नहीं, उनको भी समझाने से समझ में आएगा, समझाने से। हाँ, वही ज्ञान की जरूरत है। I think we should try to wind up, sir. यस सर, ये 9 बजने की तैयारी है, ये मैं कहने ही वाला था। और हमको ये सिसोदिया साहब जो रेज किए थे, उसमें नेसेसिटी और डिजायर, इसमें फर्क अपने को करना पड़ेगा कि हमारी नेसेसिटी क्या है। प्राइमरी लेवल पर नेसेसिटी को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन डिजायर को कम कर सकते हैं। क्या लोढ़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या सर? सर मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि आपकी इतनी बातें हुई, उसमें मतलब ये है कि आज के परिवेश में इसको कैसा समावेश किया जाए, क्योंकि बुकिश चीजें अपन मतलब खाली उसकी बात करें, उससे अपन प्रैक्टिकली उसको कैसे अमल में लाएं, बस वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। उस दृष्टि पे मतलब कुछ फोकस किया जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो कई चीजें ऐसी होती है बुक्स में रह जाती हैं जो अपन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। अपन आज का जो परिवेश जैसा अपन ने सीखा है, अपन ने इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी उनसे सीखा है, उसमें अपनी सोच कैसे बदली जाए, देखना पड़ेगा कि कितना आनंद मिलता है कम में। क्या दोबारा फरमाएंगे आप? आप दोबारा फरमाएं। ओके, यस सर। जो बात If I may be allowed to later on answer this question,
सुषमा जी आप बोलिए, फिर आई लाइक टू से हाँ, फ्यू वर्ड्स। ये हेनल जी से जरा पॉइंट ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? जी बोलिए। हाँ सर, जो अभी सर ने बताया कि मटेरियल प्रैक्टिकल अप्रोच भी कुछ हो जाना चाहिए, लाइक वी आर डिस्कसिंग जस्ट, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे और इसकी इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंची जाए, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि रूट लेवल पे जो थिंकिंग है लोगों की आजकल, जो वेस्टर्न कल्चर, जैसे भंडारी सर, कुखरना सर ने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, मैम ने जो हाईलाइट किए, कि रूट लेवल पे जो आजकल है कि जो नई जनरेशन है और जो ओल्डर जनरेशन है, मतलब मॉडरेट टू ओल्डर 50-60 अप टू जिनके एज है, सभी लोग आजकल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम एक ये है कि इन्फ्लुएंस की वजह से दुनिया, चलो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक हो रही है तो वो ज्यादा एक्सेस कर पा रहे हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, और उससे प्रॉब्लम ये है कि सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, देख जिसको बोलते हैं ना कि इसने ये किया तो मैं भी करती हूँ, ये रिया तो मैं भी लेती हूँ। तो पोजीशन की जो डिमांड है और डिजायर है दोनों बढ़ती जा रही है, तो थिंकिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा सोसाइटी की। उसके अलावा प्रैक्टिकली हम ये सब चीजों को इम्प्लाई नहीं कर सकते, एक पॉइंट ये है। दूसरी चीज मैं ये बता रही हूँ कि आजकल कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है सर्वाइवल इश्यू के लिए, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पर्सनली हर एक घर के लिए, कि गवर्नमेंट भी बहुत एनकरेज कर रही है स्मॉल मीडियम कंपनीज और एंटरप्राइजेस ओपन करने के लिए और अपनी इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए। इसकी वजह से एडवर्टाइजिंग ज्यादा हो रही है, सबको अपने बिजनेस चलाने हैं, अपने घर का मतलब गुजरान चलाना है वगैरह, तो मार्केटिंग, सोशल मीडिया जैसे अभी अमेजोन, मिंत्रा सब एप्स है, तो उसमें लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इससे मटेरियलिज्म आपके सामने ही हर रोज इतना आ रहा है, इतनी एडवर्टाइजिंग आ रही है कि आपको ना लेना चाहे तो भी आप उस पर फोकस नहीं कर सकते। और इतना रूट लेवल पे तो ये लोग थिंक भी नहीं करते कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसकी अवेयरनेस हमें लानी चाहिए लोगों में बाय एडवर्टाइजिंग मोर एंड मोर, मतलब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को भी, सोशल मीडिया को ही हमें यूज करके ये हमारी जो थिंकिंग या सेमिनार्स है उसके जरिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई ये पोजीशन जो हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, मतलब हाउ दे आर मोल्डिंग अवर थिंकिंग, अवर लाइफस्टाइल, एंड इससे भी बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ियां हैं 2-3, उसको ये कैसे अफेक्ट करेगी। जैसे कि अभी जैसे हमारा पृथ्वी पर हमारा टाइम लाइक हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, उसी तरह जो भी मटेरियल मैं बेसिकली आई एम अ जियोलॉजिस्ट, तो मुझे पता है कि भाई कितना मटेरियल हम निकालते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है और हमारे तक पहुंचता है, फिर वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट अर्थ को और बिगाड़ता है। तो अर्थ की जो सोर्सेस है वो भी बहुत लिमिटेड है, तो अर्थ इतनी डिस्टर्ब हो रही है अभी। ये जो क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन शॉर्ट करिए। अभी नोबेल प्राइज समिट जो 2021 है उसमें इन लोगों ने एक सेमिनार रखा है, मतलब ऑनलाइन, अवर प्लानेट अवर फ्यूचर। तो हम अपने फ्यूचर जनरेशन और अपने प्लानेट को कितना हार्म कर रहे हैं मटेरियल पोजीशन से, उसको हम अगर दिखा सके तो थोड़ी अवेयरनेस आ सकती है लोगों में। ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है कि लोग थोड़ा सोचे और रिसोर्सेज को कम यूज करें और उसकी ऐसे ही पोजीशन की डिजायर थोड़ी कम होगी। दैट्स माय पॉइंट। ओके, भंडारी साहब क्या कह रहे हैं? बोलिए साहब, भंडारी साहब, ये धन्यवाद ज्ञापन भी करना है। ये सिसोदिया साहब कुछ कहना चाह रहे थे, अगर टाइम परमिट करता है तो उनको बताइए, अदरवाइज आप ये धन्यवाद ज्ञापन और आप जो कमेंट करना चाहें वो करिए। नहीं, जो मैं दो एक कमेंट करना चाहता था, जो लोढ़ा साहब ने बताया, पॉइंट रेज किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट सो बैड एज वी थिंक। पीपल विल नॉट बी कन्विंस्ड कि आपको हैप्पीनेस चाहिए। आई डोंट थिंक एवरीबडी वांट्स टू बिकम हैप्पी। दे से दे वांट टू बिकम हैप्पी बट दे डू थिंग्स विच विल मेक देम अनहैप्पी। तो ये कंसेप्ट कि अपरिग्रह करो, ये करो, कम यूज करो, ये सब
मेरे ख्याल से they are not going to change people's mind, because we have already adopted the Western model of living. Point I want to make is that we have to learn from nature. Nature works in a cyclic way. Everything is cycled. Water from ocean to clouds to wells and goes back. Nothing is wasted. Same thing is about everything in nature. It follows two principles. One is that in the process nothing is wasted, everything is used, and second is that everything is efficiently used by adopting a method which is most efficient. आप देखेंगे कि जो अमीबा से लगा के और पंचेंद्रिय जीव तक का विकास हुआ है, इसमें nature has used all the resources in a very efficient and very powerful way by shortest route. So we have to present before people a cyclic model in which you become part of that cycle, then nothing will be wasted. Or another is linear model in which everything is taken from point A and dumped at point B, which is a waste. तो हम इसरो में एक मॉडल यूज करते हैं which says cost to benefit ratio. Whenever we send a mission or something, we say इसका इतना पैसा लगेगा, इतना खर्च आएगा और इसका क्या benefit मिलेगा. And we adopt a system which is most beneficial with least cost. तो ये हमको इकोनॉमिक मॉडल्स में ये बेनिफिट में हार्म टू नेचर, मतलब जो कॉस्ट है उसमें हार्म टू नेचर, हार्म टू एनवायरनमेंट, हार्म टू पीपल, ये सब कैलकुलेट करके मतलब मैथमेटिकल, एंड वी हैव टू प्रेजेंट बिफोर द वर्ल्ड, एंड देन आई थिंक पीपल विल ट्राई टू अडॉप्ट something which is most beneficial and which is cyclic rather than linear and so on. So we can have a round table debate on this, and I think we'll try to present some more quantitative ideas on this. But at this time, Anil Kumar Jain Sahab has told me to wind up, so I would like to thank our learned speaker for such a delightful lecture. And as Sulekh Bhai said, we felt like we go on hearing it ad infinitum. So I think this has been very fantastic.